क्लैरिटी लूप से ही देख के पता चलती है. हाँ, diamond price is going down because of Right. that also. Do diamonds break? Probably 2-3 years. So there is no point misguiding a client कि आप ये ले लो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है. एक नॉर्मल कंज्यूमर को कैसे पता चलता है कि व्हाट इज रियल व्हाट इज फेक? एक हाथ में नेचुरल एक हाथ में लैब ग्रोन रख के मेरे को भी दे दोगे यहाँ पे तो मैं नहीं बता सकता. इट इज प्योर लैब, इट इज द सर्टिफिकेशन दैट विल हेल्प यू. ये लैब ग्रोन का जो मार्केट है ये बेसिकली सडनली इतना बड़ा कहाँ से हो गया? आजकल की जो यंगर जनरेशन है दे आर प्रोबब्ली ओके बाइंग 2 लाख रुपए का एलवी का बैग बट नॉट बाइंग अ डायमंड. इंडिया बहुत री एक्सपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है यहाँ से काफी. अमेरिका इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ डायमंड. अमेरिका कंज्यूमर कंट्री है, उसको कुछ भी दे दो बस वो लेता ही रहता है. इंडिया में सबसे बड़े जो डायमंड मैन्युफैक्चरर्स हैं, लाइक इफ यू कैन लिस्ट दोस डाउन. Fondly we call them SRK. जिन्होंने अपने सब एम्प्लॉइज So that's Hi, Ashrat, hi. and welcome to Expert Talk with Bhavya Desai. Thank you so much for having me. So आज का ऑफ कोर्स हमारा टॉपिक और कॉन्वर्सेशन जो है वो डायमंड्स के बारे में है. Right. एंड द रीजन वी ये कॉन्वर्सेशन और ये टॉपिक पिक किया है बिकॉज आई थिंक करंटली जो डायमंड का मार्केट है विद ऑफ कोर्स लैब ग्रोन एज वेल एज रियल डायमंड्स, ऑल ऑफ दोज आर काइंड ऑफ एट इट्स पीक. बहुत इसमें मार्केट में बात भी चल रही है. ट्रेडिशनली डायमंड्स हमारे दिमाग में हैव ऑलवेज बीन पुट एज समथिंग व्हिच आर फॉरएवर, evergreen. Yes, true. Of course, True. They somewhat hold their value in gold as well. But आज के तारीख में lot of these things are changing. So उस हिसाब से of course ये conversation है. Right. See, with lab grown coming in, the market scenario काफी चेंज हो गया है because disruption बहुत आ गया है, pricing बड़ी off हो गई है. So there's a lot of disruption happening in the market because of lab grown and diamond price is going down because of that also. So एक कंज्यूमर के दिमाग में ना बहुत अनसर्टेनिटी हो गई कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, इज लैब ग्रोन द न्यू थिंग, क्या नेचुरल डायमंड अपनी वैल्यू होल्ड करेंगे. सो देयर इज लॉट ऑफ थॉट्स दैट आर गोइंग अराउंड डायमंड इंडस्ट्री that are very difficult for the layman to understand what is exactly happening in the market. Right. So and that's the reason why ये conversation है आज. मैं hope कर रहा हूँ कि ये conversation से we are able to give them a beautiful picture पूरे diamond industry के बारे में, lab grown versus real diamonds. Of course कुछ भी अगर उनके दिमाग में myths या questions है, right, तो we can take care of those as Absolutely. well. अब शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि Ashrat is full name is Ashrat Jain. Of course, he's been in this industry for almost over 2 decades. Yes, yes. ये import करते हैं, export करते हैं. He's been working with diamond jewelry for like a long, long time. He also has his own brand as well. Brand का नाम तू ही ले ले. Ikai by YK Jewels. Right. So ये है. We are also very good friends as well. So there is a possibility बीच में कि we might break into a weird conversation as well. But just to start with, let's just paint a normal picture of थोड़ा तो बता दिया आपने. Just paint a holistic picture of the diamond market today, both consumer and business side से. See, on the business side, diamond industry में there is a big change because earlier small sizes, under 1 carat were moving a lot because that was daily wear. रोज बिकने वाली आर्टिकल वो होता था. Right. But right now it is shifted to a different scale, that is 3 carat and beyond. 3 carat plus का market है, that is going very strong. Right. And जो छोटा जो एक रोज का जो डेली वेयर था ना, अंडर 1 carat 50 pointers 30 pointers, that has gone very slow. Okay. So maybe one of the reasons for that is because of lab grown coming in. The average consumer, he is thinking of not spending that amount and putting in lab grown probably. Got it. So that is one of the reasons कि थोड़ा market में disruption है. Got your point. Yeah. ये pointers and all ये you said, इसका मतलब क्या होता है? See, basically there are 4 C's to a diamond. Right. So that is the more for a layman it is a better way to understand how to buy a diamond also. Right. So there are 4 C's to a diamond. One is carat, cut, color and clarity. Okay. So with carat, it means the size of the diamond. It could be a 10 pointer, 15 pointer, 30 pointer, 50 pointer, 1 carat stone.
So carat is basically the weight of the stone. Right. So the second aspect is the cut of the stone. Like it's a round shape, it's a princess shape, it's a pear, oval, and also how is the diamond made. There are like a diamond could be an excellent cut, a very good cut, a good cut, a fair cut, a poor cut. So the best buy, it has to be an excellent cut. Okay. So that is the best possible cut that you can buy in a diamond, and that is the one that the customer should go for. Right. So cut is a very, very, very important aspect of a stone, because a badly cut stone will look probably 30% smaller in terms of the look. The carat is the same, but वो उसको देखने में वो छोटा लगेगा. So that is a very, very important aspect to it. Then comes the color. Color, it starts from D. That's the best color possible in a diamond. It goes till say N color, N or OP color also. So D means the best color, and goes like E, F, G. You go down the color shade. Right. So the better the color, the higher the pricing. Got it. And D color is the best possible color in a diamond. Right. So next comes the clarity. So clarity is the inclusions जो एक stone के अंदर, diamond के अंदर inclusions हो सकते हैं. Impurities that are naturally present in the diamond itself. Right. So the best clarity possible would be IF. That's internally flawless. Then we go to VVS1. That is very, very slightly included 1. Then we go to VVS2. That's very, very slightly included 2. So now like this, it goes like VS1, VS2, SI1, SI2, SI3 and I1s. Okay. So IF, VVS being the best possible, because with the naked eye, you can't see anything. In fact, IF means even with a loop, a 10x microscope or a loop, you can't see anything in the stone. Okay. And with gradually going down, like VS1, you can see something, VS2, but naked eye, even till SI1, you'll feel there's nothing in the stone. But when you look at it in a microscope or a loop, you can find some impurities. Got it. So that also impacts the pricing a lot. Understand. So better the clarity, so the better the more expensive the stone is, and the client should focus on buying something that is mid-range. Because इतना पैसा आप ऊपर की में डाल दो, and there is no point to it. Got it. And नीचे ज़्यादा ले लेंगे तो it affects the luster, the clarity, everything on the stone. So mid-range is a good VVS2, VS1 is a good price bracket for a consumer to buy. Okay. Because they get value for their money. Understood. So मतलब ये फिर मतलब अगर किसी को कुछ खरीदना होगा तो ये क्या चीजें उनको ये माइंड में रखनी चाहिए? I know you said 4 C's. Yeah. But say for example if somebody has like a budget of 1 lakh. Yeah. Assuming. Yeah. तो वो 1 lakh में like ये factors में what are the things that you should get? Just a hypothetical situation. I mean, see, diamond का ना range बहुत बड़ा है. मतलब आज for a customer who's coming in with the 1 lakh budget, we have to see उसको क्या size चाहिए. He's looking for a 50 pointer, then I will say चलो go for a H color, VS clarity. Probably it can fit in your budget. Now he comes with the 1 lakh budget, but he's looking at something around 70-80 pointer. I'll say you have to go for J color and probably an SI2 purity. Okay. So with diamond, it has to be very subjective in a way कि आपको क्या लेना exactly and how do you go about it. Right. So मतलब subjective meaning के अगर आपको ज़्यादा clarity चाहिए तो stone छोटा होगा. Yes. बड़ा चाहिए yes. तो yes. अगर आपने समझो 1 लाख का बजट लेके आए हो, अब आपको चाहिए 50 पॉइंटर उसमें, तो आपको समझो HVS क्लैरिटी बैठ जाएगी. बट अगर सेम में आपको 70-80 पॉइंटर में लेना है तो आपको शायद JSI2 में जाना पड़ेगा. सो the color gets lower, the clarity gets lower. Got it. If you go for a bigger size in the same price bracket. Understood. Yeah. Because मैं मतलब इस हिसाब से सोच रहा हूँ ब्रेक डाउन करने की कि usually like अगर जो स्टार्ट करते हैं डायमंड्स लेने के लिए and all of those things, then मेरे दिमाग में ऐसा है कि शायद उनका ये 1 लाख के आसपास का बजट होता है, तो then what is the best thing that they can invest in usually? And अगर उसमें भी इन्वेस्टमेंट करना है then usually ऐसा है कि मार्केट में more people like prefer rings, they prefer earrings, jewelry wise मतलब कैसा है ये breakdown? See, generally people come in for daily wear rings, okay, pendants. You young girls, they prefer pendants, with small pendants, little earrings. So the daily wear things that are wearable every day, that are the more fast moving articles. Say probably 50,000 to 2 lakh का bracket is the thing that moves a lot in terms of jewelry, because छोटा item है, रोज पहनना है, तो that is the price bracket that moves a lot. Understood. Great. ये 4 C's के बारे में you spoke about, तो उसका थोड़ा breakdown करते हैं, because first one was carat, right? तो ये carat जो है वो calculate कैसे होता है? Bare basic. It's a machine. There's a machine, the weight machine. It's a proper weight machine. आप उस पे stone रखो
it'll show you the carat. Oh. So it's a 1 carat, it will say 1.00. It's a 1.10 cents, it shows 1.10 carat. It's a very precise machine. It's called normal weight machine होती है, but it's a very precise. So that to the proper उसमें आपको end जितना भी weight है exact weight वो machine दिखाएगी. Understood. अभी the second C I think you said is color. Yeah. Right? If I'm not Cut. cut. So cut में मतलब ये princess cut और ये सब जो अलग अलग cuts होते हैं उसमें क्या फर्क होता है? cut ये जो cut का aspect है, it's not basically the different shapes of diamond, basically how the diamond is cut. Okay. There are different shapes to a diamond, lot of shapes to diamond, pier, marquise, oval, heart, but exactly this the cut stands for how the stone is cut. Okay. I mean how well the stone has been cut. Right. कि excellent make है, very good make है, good make है. इससे क्या होता है कि because the more better the stone is cut in a way, उसका luster better आता है, उसका very मतलब the look is better, the stone की the presence of the stone is better if the stone is very well cut. Got it. So it is a very important aspect of a diamond जो कि शायद underrated है for a consumer. Got it. At a business level, at a B2B level, सबको पता है कि cut is the most important thing. Okay. In a diamond. But आज भी consumer level पे cut की इतनी knowledge नहीं है because as a retailer somewhere someone will try to push a stone that is cheaper. Okay. To the client because he can make probably more money on it. Right. So client को लग रहा है कि उसने एक शायद HVS का stone ही खरीदा है and the certificate will say that it's an HVS, but it could be a very good cut or a good cut, and the price difference between an excellent and a good cut is close to say 20-25% sometimes. Wow. So that's a big difference. Margin, yeah. So client को लगता है कि मैंने लिया HVS है, बहुत सस्ता मिल गया, but it could be stone that is not cut in a very good way. Understood. So cut has a very important aspect to a diamond. To a diamond, okay. ये कट के बारे में भी जब when you say, so ये mostly जब हम बात करते हैं तभी हमेशा बोलते हैं ऐसे solitaires. Yeah. ये solitaire है. So हाँ. solitaire क्या है basically? Solitaire basically means a single stone. Okay. It's a single stone. Generally in a market, in our diamond industry, you can say 30 pointer up को solitaire बोलते हैं. Its exact meaning is single stone. Got it. But solitaire 30 pointer से ऊपर का हर stone को हम solitaire बोलते हैं. अच्छा. And आपने ring में एक stone लगा दिया तो वो चाहे 10 pointer भी वो solitaire ही कहलाएगा. But technically 30 pointer and up के stones को solitaire को बोला जाता है. It is just basically because it's one stone. ऐसा कुछ नहीं है कि कोई specific cut वाट हो. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. But ये you are saying it's single stone. So normally diamonds जो होते हैं उसमें मतलब दो डायमंड्स को भी जोड़ के कुछ बनता है. हाँ, ज्वेलरी बनती है ना. सिंगल आपने सिर्फ एक रिंग बना ली और एक गोल्ड बैंड में एक रिंग सेट कर लिया, एक सिर्फ वन सिंगल स्टोन कर लिया तो वो सॉलिटेयर हो गया. एंड यू क्लस्टर ऑफ स्टोन्स लगा लिए तो इट्स अ नॉर्मल रिंग विद ट्रेडिशनल पबे सेटिंग या कोई प्रॉन्ग सेटिंग. सो नॉर्मली मतलब व्हेन मोस्ट वुमेन दे वो रिंग उन लोग बनाते हैं तो आजू बाजू में डायमंड्स होते हैं और सामने ऐसा रॉक्स सो दे दैट्स व्हाई दे से सॉलिटेयर है. तो जो बड़ा स्टोन है, जो सेंटर स्टोन है, उसको सॉलिटेयर बोलते हैं. बाकी नॉर्मल आपके स्मॉल साइजेस के डायमंड्स हैं. गॉट इट. इंटरेस्टिंग. ओके. एक और मैं देख रहा था कि यूजुअली जो ज्वेलरी होती है ऐसा है कि इट्स कैप्ड काइंड ऑफ टू 14 to 18 कैरेट इन टर्म्स ऑफ वाइट गोल्ड इन कंपैरिजन विद लाइक सिंपली पुट कि डायमंड का जो ज्वेलरी होता है या वाइट गोल्ड जो होता है वो 18 कैरेट पे होता है और यूजुअली गोल्ड जो बोलते हैं हम 24 कैरेट पे होता है. क्यों? सी गोल्ड इज अ वेरी सॉफ्ट मेटल. ओके. 24 कैरेट गोल्ड तो आप हाथ से ऐसे प्रेस करोगे वो दब जाएगा. It is very soft. So traditionally gold jewelry is made in 22 carat because you have to add some alloy to make it 22 carat because वरना वो आप पहनोगे तो वो टिकेगा ही नहीं, वो खराब हो जाएगा. So 22 carat is traditional gold jewelry, but 22 carat is also still soft. It will not hold your diamonds in the jewelry. तो उसको 18 carat पे इसलिए लेके आते हैं because add a metal तो आपका stone गिरेगा नहीं. अगर मैं 22 carat में gold jewelry बना दूंगा ना तो आप चलते फिरते आपका stone गिर सकता है. So we make it to 18 carat so that the stone वहाँ पे hold रहे. Okay. Because to make the gold metal more stronger because gold traditionally is a soft metal. Right. 24 carat gold को आप ऐसे हाथ से दबा दोगे. Okay. So 22 carat इसलिए डालते हैं कि gold jewelry में चलो metal diamonds नहीं है, stones नहीं है तो it's only plain gold तो that's okay. 18 carat इसलिए करते हैं to make the stones या कुछ भी color stones हो, maybe emeralds हो, rubies हो, diamonds हो, so they can hold. Got it. And 14 carat का लॉजिक सिर्फ यही है कि गोल्ड प्राइसेस बीइंग सो हाई
the affordability becomes an issue. So Right. people still want to wear gold, but they don't want to pay a price that is. So 14 कैरेट का आने का रीजन सिर्फ प्योरली यही है कि भाई लोगों की बजट में आ जाए, बिकॉज इट इज गोइंग सो स्टीप, Yes. एंड विद नाउ तो 9 कैरेट इज आल्सो इन द मार्केट, Right. बिकॉज पीपल वांट गोल्ड बट It's दे really, हैव अ पॉकेट टू लुक. yeah. तो So ये जब भी अगर 9 कैरेट, 14 कैरेट, 18 कैरेट करते हैं तो उसमें एक्चुअली दैट क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इज देयर, हाँ, एंड उसके साथ में फिर बाद में क्या मिलाया जाता है टू मेक इट देयर आर लाइक डिफरेंट मेटल्स आते हैं, काफी मेटल आते हैं, अच्छा. देयर आर डिफरेंट लॉट ऑफ डिफरेंट मेटल्स अवेलेबल इन द Got it. मार्केट. बट आप जब भी खरीदते हो यू शुड बाय विद अ हॉलमार्क, because hallmark is one thing that is mentioning कि आपका इसमें 14 कैरेट है, 18 कैरेट है, 9 कैरेट है, 22 कैरेट है. ओके. हॉलमार्क ज्वेलरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू इट. क्या है हॉलमार्क सर्टिफिकेशन? सर्टिफिकेशन है, इट्स अ गवर्नमेंट अप्रूव BIS एजेंसीज होती हैं सब, दे गिव यू सर्टिफिकेशन ओके. कि ज्वेलरी आपकी सब स्टैंपिंग होती है उस ज्वेलरी पे कि दिस इज 18 कैरेट, दिस इज 14 कैरेट, एंड एवरी ज्वेलर इज रिक्वायर्ड टू गिव दैट थिंग टू द क्लाइंट. ओके, सो कैन यू एक्सप्लेन, ये जरा आप समझा दीजिए कि सर्टिफिकेशंस बेसिकली क्या टाइप की होती है एंड कैसे होती है? सी नाउ डायमंड्स भी अभी विद द लैब ग्रोन थिंग आल्सो कमिंग इन, राइट. तो अभी सबको डर लगता है कि हम नेचुरल खरीद रहे हैं या लैब ग्रोन खरीद रहे हैं, पता ही नहीं है. राइट. आप मेरे को ट्रस्ट करते हो ठीक है, बट ट्रस्ट एक पॉइंट के बाद यू वांट दैट वैलिडेशन आल्सो कि मैं सही खरीद रहा हूँ. राइट. तो देयर आर ट्रेडिशनली 3 टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशन इन डायमंड्स सॉलिटर्स जो चलते हैं मेजर. वन इज GI, वन इज IGI, एंड द थर्ड वन इज HRD. ओके. These are the 3 recognized labs. GI being the best lab. राइट. IGI, HRD ट्रेडिशनली इंडिया में ज्यादा मूव करते हैं, GI थोड़ा कम करता है, बट GI is the best lab available, Gemological Institute of America, IGI and HRDs. And we also advise the clients, या हर किसी को बोलते हैं कि आज की डेट में आप सर्टिफाइड ज्वेलरी ही खरीदिए, बिकॉज एक आपको सेटिस्फैक्शन रहेगी कि मैंने सही खरीदा है, बिकॉज द सर्टिफिकेट विल मेंशन एवरीथिंग ऑन दैट, राइट. कि आपने कितने कैरेट का स्टोन लिया है, क्या कलर है, क्या क्लैरिटी है, क्या कट है, सब कुछ उस पे आएगा विद अ लेजर इंस्क्रिप्शन आल्सो ऑन द स्टोन. ओके. Every solitaire that comes in right now with the certificate, it has the inscription on the girdle of the stone. Oh. So with the loop or a microscope, you can see that number and you can verify it with the certificate that you have, Right. that it is the same. And even you can check on their websites, you put the number, it will show the same report. Okay. So in today's scenario, आज के मार्केट में it is very important कि आप सर्टिफिकेशन के साथ ही खरीदिए. इवन ज्वेलरी भी सर्टिफाई होती है. It's Got not only the single stones are certified, ज्वेलरी भी सर्टिफाई होती है. ओके. एंड इट इज अ मस्ट. मस्ट. इट इज अ मतलब मस्ट. अगर आपने यूजुअली समझो, अगर मैंने आज एक डायमंड खरीदा और अपना बिना सर्टिफिकेशन के खरीदा, सो देन एक बार खरीदने के बाद देन मैं वापस नहीं, यू कैन गेट इट, या यू कैन वेरीफाई. समझो आपने आज नॉन सर्टिफिकेट का स्टोन लिया है, बट आपको 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल भी सर्टिफाइड कराना है, यू कैन गो एंड आप जाके उसको लैब में देके आप उसको सर्टिफाई करा सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार ले लिया तो उसको वापस सर्टिफाई नहीं करा सकते. इट्स नथिंग लाइक दैट. गॉट इट. और अगर समझो मैंने आज एक डायमंड लिया जिसके नॉन सर्टिफाइड है, तो कल उठ के अगर मुझे वो बेसिकली बेचना है, तो बिकॉज इट्स नॉन सर्टिफाइड तो उसकी वैल्यू भी कम होती है. यस. व्हेन यू हैव अ पेपर, आपके पास सर्टिफिकेट साथ में है, आप जिसको भी दे रहे हो उसको बोल सकते हो, यार देखो ये H कलर है, ये VVS क्लैरिटी है, ये मेरे को पता है, एंड यू कैन हैव अ बेटर प्राइस टू इट. गॉट इट. कि आपको पता है कि मेरे पास ये चीज है, कल को आप बिना सर्टिफिकेट स्टोन लेके आते हो, तो मैं उसको बोलूंगा वो तो J कलर है, आपने खरीदा शायद H कलर के हिसाब से है, बट मैं आपको फिर उसको नीचे रख दूंगा कि J कलर है, मे बी आई एम बीइंग ग्रीडी और व्हाटएवर, यू नो दैट, कुछ भी हो सकता है. राइट. तो विद द सर्टिफिकेट अराउंड आपको भी सेटिस्फैक्शन है एंड यू विल गेट बेटर वैल्यू फॉर इट. गॉट इट. गॉट इट. ये व्हेन यू से ये लूप आप बोल रहे हो, तो लूप मतलब वो जो पिक्चर में ऐसा दिखाते हैं ऐसा पहनते हो? हाँ, मतलब वो थोड़ा सा ज्यादा दिखा देते हैं पिक्चरों में, बट इट्स अ नॉर्मल लूप. मतलब एक लेंस जैसा आता है, जनरली इट्स 10x, मतलब आप 10 टाइम्स यू कैन सी दिस, इट गोज टिल 14x, 22x भी आता है. राइट. तो वी यूज दैट 10x इज अ स्टैंडर्ड लूप जो एक हम जनरली यूज करते हैं डायमंड चेक करने के लिए, इंडस्ट्री में डायमंड देखने के लिए, कि बिकॉज हमें देखना पड़ता है अंदर क्या है, कैसे है. गॉट इट. सो ये क्लैरिटी के बारे में भी व्हेन यू सेड, तो ये क्लैरिटी लूप से ही जनरली लाइक समवन हु इज अ सीजन्ड प्रोफेशनल एंड ऑफ कोर्स बीन इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, तो वो उससे भी देख के पता चलती है. हाँ, लेमैन के लिए डिफिकल्ट है. हाँ, एक जो हायर जितना बेटर क्लैरिटी है, जैसे IF VVS 1 VVS 2 फॉर अ लेमैन, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, इवन लूप लगा के भी.
गॉट इट. इवन फॉर अ सीजन प्रोफेशनल VVS1 VVS2 में थोड़ा टाइम लगता है. इट विल टेक few seconds or probably a minute to see the stone again and again and then identify कि कहाँ exactly clarity है आपकी. राइट. बट नीचे आ जाओगे आप थोड़ा सा VS2 SI1 SI2, वहां पे एक बार आप क्लाइंट को भी थोड़ा सा एफर्ट लगाएगा तो उसको दिख जाएगा कि स्टोन में कितनी इम्प्योरिटीज हैं या Got कितने चीजें हैं स्टोन के अंदर. गॉट योर पॉइंट. ओके. ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में, डू डायमंड्स ब्रेक? Traditionally no, because diamond is probably the hardest natural substance, you know, and diamond ऐसे आप ऐसे गिर जाएगा तो टूट नहीं जाएगा. राइट. बट क्या होता है कई बार डायमंड्स में ना बहुत इम्प्योरिटीज होती हैं, लाइक SI3 I1. अब एक समझो एक क्रैक पहले से हुआ है, अब उस क्रैक पे ही प्रेशर लग जाए तो वो वहां से टूट जाएगा. बट एज सच डायमंड आप बोलो कि आप चल रहे हो, आपने रोड पे हाथ लग गया, दरवाजे पे हाथ लग गया, कुछ हाथ लग गया, डायमंड कुछ नहीं होगा. गॉट इट. तो ये क्रैक भी जो आता है देन वो इंटरनली आता है, इज इट, और ऊपर से भी शेव ऑफ हो जाता है? नहीं, बट वो स्टोन बहुत ही वीक होगा ना, हाँ. तो ही स्टोन टूटेगा, बिकॉज वो स्टोन पहले से ही समझो टूटा हुआ था. हाँ. तो वहां पे वापस उसी जगह पे कुछ लग जाए विद अ वेरी हैवी इम्पैक्ट तो Right. कुछ होगा. बट एज सच डायमंड को आप सोचो कि गिर गया तो टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा. ना वो टूटेगा ना वो ब्रेक होगा. बट क्या होता है डायमंड के नीचे से पॉइंटेड होता है, राइट. तो जो क्यूलेट पे गिरा तो वो हाँ. हल्का सा चिप हो जाएगा, बट वो वापस रिपेयर भी हो जाएगा. थोड़ा वेट लॉस होगा आपका उसमें, गॉट इट. बट एज सच डायमंड टूटेगा नहीं. गॉट इट. ओके. नाउ जनरली मतलब हमारे दिमाग में हमेशा बहुत पहले से कहा गया है, एंड ऑफ कोर्स स्पेशली इंडियंस जो रहते हैं वो हमेशा उनको बोला जाता है कि भाई आप इन्वेस्ट करिए, यू नो, गोल्ड में करिए, ज्वेलरी में करिए, बिकॉज नेचुरली ये हो रहा है. डायमंड्स के डिपार्टमेंट में यूजुअली हमेशा ऐसा नहीं होता है. ऐसा भी कहते हैं कि भाई दीज आर हेयरलूम्स, डायमंड्स यूजुअली गेट पास्ड ऑन. यस यस, इट्स फॉर जनरेशंस. राइट. तो ये डिफरेंस क्यों होता है इन दोनों के बीच में? सी, गोल्ड आपका एक लिक्विड एसेट है, कि रातों रात भी आपका सोना बिक जाएगा. तो ट्रेडिशनल हाउस होल्ड, इंडियन हाउस होल्ड में एक रहता है कि सेफ्टी कहाँ है, वो सोने में है. कि सोना खरीद दो आपका आधी रात को बिक जाएगा. डायमंड ट्रेडिशनली इट्स अ पास डाउन जनरेशन जो आप बात कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही है कि इट हैज मोर इमोशनल एंड सेंटिमेंटल वैल्यू. बिकॉज आप हीरा खरीदते हो खुशी में, कि कुछ घर में शादी है, कुछ है, यू नो, यू फील हैप्पी, यू अचीव समथिंग, आप अपने आप को गिफ्ट करते हो, वाइफ को, डॉटर को, किसी को भी. सो एक इमोशनल सेंटिमेंटल वैल्यू ज्यादा है. इन्वेस्टमेंट वैल्यू डायमंड की लास्ट 3-4 सालों में द प्राइसेस हैव रियली गॉन डाउन, बिकॉज बड़े भी ऐसे थे. सो ट्रेडिशनली पहले हम ये लोग बोलते थे कि इन्वेस्टमेंट भी है, क्योंकि बस हीरा बढ़ता ही चला गया था. बट राइट नाउ इफ यू आस्क मी, लास्ट 2-3 साल का ग्राफ देखते हुए डायमंड के प्राइसेस हैव रियली गॉन डाउन. सो आज उसको हम एज अ इन्वेस्टमेंट नहीं पिच कर सकते. ओके. बिकॉज वी हैव सीन कि लास्ट probably 2-3 years हम अपनी वैल्यू होल्ड नहीं कर पाए हैं. राइट. सो देयर इज नो पॉइंट मिसगाइडिंग अ क्लाइंट कि आप ये ले लो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है. राइट. बिकॉज कहीं ना कहीं प्राइजेस करेक्शन आ गया है. राइट नाउ आई फील, इफ यू पर्सनली आस्क मी, आई थिंक डायमंड एक बहुत ही लेवल पे आ गया है. अनरियलिस्टिकली अब मेरे हिसाब से इट इज स्टिल, आई विल नॉट से कि इन्वेस्टमेंट है, बट आपका पैसा सेफ है. आप सी, यू बाय अ BMW, यू बाय अ Merc, आप गाड़ी निकाल के लाते हो शोरूम से, 30% अगले दिन ही कम हो जाता है, बट यू डोंट कंप्लेन, यू एंजॉय दैट कार ना. सो डायमंड शुड बी लाइक दैट. आपकी वैल्यू होल्ड करेगा, बट आपको पैसा देके जाएगा. प्रोबेबली यस, 10 years डाउन द लाइन यस, बट आज मैं आपको बोल दूं कि गारंटी उस बात की नहीं है. बट हाँ, इट विल होल्ड इफ यू बाइंग अ गुड थिंग. आप अच्छी चीज खरीद रहे हो, एक कमर्शियल, यू नॉट बाइंग लो क्वालिटी, यू बाइंग अ डिसेंट क्वालिटी, आपकी वैल्यू होल्ड करेगा और आप उसको एंजॉय भी तो करते हो साथ साथ. राइट. एग्जैक्टली राइट. बट ये, सो यू मीन टू से ये करेक्शंस जो आई है, दैट करेक्शन इज लाइक हाउ, जैसा भी गोल्ड प्राइसेस, मेटल प्राइसेस सब भाग रहे हैं बहुत ज्यादा, तो डायमंड भी तभी एक टाइम पे बहुत भागा था. आई रिमेंबर लाइक आई थिंक 5-6 years ड्यूरिंग कोविड इट गॉट ऑफ द रूफ. राइट. एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट डायमंड रोज बढ़ रहा था. हां. सो उस हिसाब से मतलब एज इन लाइक, तो गोल्ड में भी अकॉर्डिंग टू यू सम करेक्शंस कुड पॉसिबली कम. यार गोल्ड के साथ ना क्या है भव्य, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्वड ना. कंट्रीज, इकोनॉमीज चल रही हैं. गोल्ड इतना स्पेकुलेटिव है ना, कहीं भी वॉर होता है, कुछ भी वॉर का सिनेरियो होता है, हर कंट्री इज बाइंग गोल्ड. तो गोल्ड जेन्युइनली अनरियलिस्टिक लगता है, बट अभी भी लगता है कि और बढ़ा जाएगा और बढ़ता चला जाएगा. या 2026 में वो कह रहे हैं सिल्वर को देखो, गोल्ड को देखो आप, बिकॉज
देयर आर सो मेनी फैक्टर्स बियॉन्ड द ज्वेलरी इंडस्ट्री। ये तो हम Right. ज्वेलरी की इंडस्ट्री में हमारा यूज इतना सही है इस चीज का, तो True. बट इतनी दूसरी चीजें फैक्टर्स इन्वॉल्व है ना, तो टू कमेंट या इसमें कुछ किसी की चलती नहीं है। Difficult to say. Difficult to say. Got it. But the Right. trend, yes, it should go up. Hmm. Markets are like that. Every trade pundit is saying कि ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा. But with these things you never know. कब oil गिर जाता है, कब gold गिर जाता है, कब silver गिर जाता है, कब बढ़ जाता है. ये सब चीजें ना कोई economies countries ही चला रही हैं अलग अलग. Got it. Right. ये यू साइड के मतलब इवन सीजन्ड प्रोफेशनल जो है उनके लिए भी VVS और VVS 1 के बीच में डिफिकल्ट होता है. एक नॉर्मल कंज्यूमर को कैसे पता चलता है कि व्हाट इज रियल व्हाट इज फेक? Certification is the only thing. ओनली वे. Only way. आप अगर genuinely आप ऐसा एक हाथ में नेचुरल एक हाथ में लैब रख के मेरे को भी दे दोगे यहाँ पे कि ऐसे देख के बता या लूप लगा के भी बता दे, तो मैं नहीं बता सकता. It is pure lab. It is the certification that will help you. और that is why certification is a must. और वो ही एक तरीका है उसको एक्चुअली सही तरीके से एनालाइज करने का कि वो नेचुरल है या लैब ग्रोन है. विद अ नेकेड आई यू कांट मेक आउट. यू कांट. You can't. ओके. ये गोल्ड के बारे में जब हम बात करें तो मेरे दिमाग में आया कि मेकिंग चार्जेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन गोल्ड. ये डायमंड में भी जब आप ज्वेलरी बनाते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसा है, एंड कैन यू जस्ट टेल अस ब्रेकडाउन कैसा होता है? सी डायमंड ज्वेलरी गोल्ड ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस सेम ही है. ओके. मतलब ऐसा कोई ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है बिकॉज डायमंड सेटिंग करने के भी पैसे लगते हैं बिकॉज एवरी डायमंड सेटिंग, बट कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है. ओके. बिकॉज गोल्ड मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी मेकिंग में दोनों में सेम काम ही है. एक्स्ट्रा जो है वो यही है कि आपका डायमंड सेटिंग का एक एक्स्ट्रा काम है. दैट इज नॉट अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव थिंग टू डू. वो कवर हो जाता है. गॉट इट. सो कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है गोल्ड ज्वेलरी और डायमंड ज्वेलरी की मेकिंग चार्जेस को लेके. अंडरस्टैंड. एंड विद गोल्ड प्राइसेस गोइंग अप मेकिंग चार्जेस भी बढ़ जाते हैं बिकॉज व्हेन यू वर्किंग विद द मेटल, आप कोई भी मेटल को यूज करते हो वो घिसते हैं, कम करते हैं तो वो इवेपोरेट होता है, नीचे गिरता है, तो आपका वेस्टेज बढ़ता है. राइट. सो अर्लियर अगर समझो आपका 1 ग्राम वेस्टेज हो रहा था समझो 6 months बैक, तो आपके समझो 1 लाख रुपए लग रहे थे. आज वो वहीं पे आपके 1,35,000 लग रहे हैं पर 10 ग्राम्स. तो वेस्टेज बढ़ती रहती है, इसलिए मेकिंग चार्जेस थोड़े एज द गोल्ड प्राइसेस गो अप आपके मेकिंग चार्जेस भी बढ़ते रहते हैं. ओके. देन लेट्स ये मतलब फिर कैसा है यू साइड के 50,000 से 2 लाख रुपीस का से एवरेज डेली वेयर का यूजुअली कंज्यूमर खरीदता है. तो समझो आज उसका 2 लाख रुपए का बजट है, तो 2 लाख रुपए के बजट में यूजुअली फिर एक कंज्यूमर के लिए क्या ब्रेक डाउन होता है? कैन यू जस्ट ब्रेक दैट डाउन फॉर अस फ्रॉम स्टोन टू मेकिंग टू जनरली व्हाटएवर? सी आज ऑफ द टॉप आज एक चीज आप समझो, हम एक नॉर्मल डायमंड की रिंग लेने जाते हैं. ठीक है, एक से 6-7 ग्राम्स मिनिमम गोल्ड लग जाता है. ओके. नाउ एट 18 कैरेट गोल्ड समझो गोल्ड इज 1,35,000 पर 10 ग्राम्स. सो इसको अगर हम 18 कैरेट करेंगे सो दैट वुड बी इनटू 0.76%. सो 1,35,000 इंटू 0.76, इफ यू कैन यूज अ कैलकुलेटर, मुझे इतना मैथ्स आ नहीं रही है. ठीक है. तो समझो 1 लाख रुपए पर ग्राम का वो प्राइस हो गया पर 10 ग्राम्स, तो 10,000 रुपए 1 ग्राम का पैसा लग गया. तो आज 7 ग्राम में 70,000 का तो आपका गोल्ड हो गया. ठीक है, अब 70,000 ये हो गया एंड 7 ग्राम्स पे समझो 1,500 रुपीज या 1,000 रुपीज, चलो हमने मेकिंग लगा ली, जबकि मैं थोड़ा कम ही लगा रहा हूँ. तो 7,000 की मेकिंग हो गया आपकी. तो 77 से 80,000 रुपीज इज योर गोल्ड एंड मेकिंग फॉर अ सिंपल रिंग. नाउ अब आपको कितना डायमंड लगाना है वो है कि अब आप उसमें समझो 1 कैरेट का स्टोन लगाओगे तो समझो 1 कैरेट का स्टोन आएगा आपका कुछ से अराउंड 2 lakhs. सो 2,80,000 के आसपास में आपको 1 कैरेट की एक रिंग बन जाती है, 1 कैरेट की, एट अ वेरी डिसेंट क्वालिटी. आई एम नॉट सेइंग कि बहुत अच्छी क्वालिटी यूज कर रहे हैं, एक नॉर्मल. व्हाट क्वालिटी विल दिस बी? जिससे IVS. ओके. व्हिच इज थर्ड इन ग्रेड in terms of clarity, yes. Okay. First is VVS1, VVS2, VS1. Okay. But color, it starts from D. But D is like quite high. So we generally start from FG color. So FGHI. Okay. But I color आपका ऐसे आप पहनोगे तो it will not reflect yellow. But थोड़ा सा as a हमें आप मेरे को दिखाओगे तो मैं बोलूँगा हाँ थोड़ा सा कलर दिख रहा है. But layman को वो कलर white ही दिखता है. Got it. Okay. सेटिंग करने के बाद वो आपको H और I कलर फेस पे
खराब नहीं दिखते। वैल्यू फॉर मनी जिसे बोलते हैं ना कि भाई कम पैसे में अच्छी चीज है, तो वो ये HI कलर का ब्रैकेट है गॉट योर पॉइंट। कि एक नेकेड आई को वो कलर डिसेंट लगता है, न्यूट्रल लगे, न्यूट्रल लगता है कि येलो भी नहीं लगता, होता है थोड़ा येलो, हम्म, बट आफ्टर सेटिंग एक आपको वैल्यू फॉर मनी जो दिखता है वो ये ब्रैकेट दिखता है। राइट। सो ये कलर की जो पहले आपने बात की थी, तो वो यूजुअली जैसे लोअर ग्रेड पे जाते हो तो थोड़ा सा वो येलोइश दिखना येलोइश शुरू हो दिखने जाता है, जाता इसकी है, वजह यस से होता यस यस। अब जैसे HI कलर में आप ऐसे देखोगे आपको हम्म। आफ्टर सेटिंग द स्टोन आपको येलो नहीं दिखेगा, बट आपको उसको हमारा एक शेड कार्ड आता है जिसमें आप डायमंड कलर चेक करते हैं, है। आप उसमें डालोगे तो आपको येलो दिखेगा थोड़ा सा। अब जैसे जैसे नीचे जाते रहोगे आप, H में कम दिखेगा, I और येलो, J उससे येलो, K L M, राइट, सो K डाउन तो एकदम पीला दिखता है फिर। गॉट इट, गॉट इट। एंड यूजुअली ये जो एज अ जन, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम थिंकिंग के अभी अगर मैं से फॉर एग्जांपल तनिष्क और आपको कंपेयर करूं, then I look at you as someone who's bespoke, राइट more bespoke. राइट They are someone who's like obviously a mass राइट market consumer sort राइट of brand. राइट। तो how do they make their jewelry and how do you make your jewelry? जैसे अभी ये कहाँ से मेरे दिमाग में आ रहा है, because you mentioned कि अगर ये breakdown होता है तो making charge ऐसा होता है, फिर आपने उसमें क्या setting की है उसमें, so I'm trying to understand कि what is the difference if मैं अगर एक consumer हूँ और मैं आपसे खरीदूँ और मैं एक तनिष्क से खरीदूँ तो। सी तनिष्क एक ब्रांड वैल्यू लेके आता है अपने साथ, एंड आज का जो प्रोफेशनल बोल सकता हूँ मैं, या जो वर्किंग क्लास जो पीपल हु आर यू नो दे डोंट हैव दैट कनेक्शन विद द ज्वेलर, Okay. जिनको जाके एक ज्वेलरी लेने उनको लगता है तनिष्क इज अ सेफ बेट, टाटा का नाम है, दे हैव देयर प्रेजेंस एवरीवेयर एंड दे ट्रस्ट आल्सो। Right. सो आज भी ज्वेलरी इंडस्ट्री इज ऑन ट्रस्ट। यू प्रॉब्ली योर मॉम योर वाइफ सबके उनकी एक ज्वेलरी एक ट्रेडिशन से ही चलती है कि Right. उनसे ही लेते हैं। हाँ, yes. सो एज अ इंडियन माइंडसेट ऐसा है कि ट्रस्ट पे ही चलती है। Hmm. तो तनिष्क हैज क्रिएटेड दैट ट्रस्ट एंड दे कमांड दैट प्राइस आल्सो। अच्छा, दे आर एक्सपेंसिव बट स्टिल दे आर द हाईएस्ट सेलिंग ज्वेलरी ब्रांड इन इंडिया बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट फैक्टर। okay. आज हम जो दे रहे हैं और वो जो दे रहे हैं कुछ अलग नहीं है, Hmm. मैं भी वही दे रहा हूँ वो भी वही दे रहे हैं, Hmm. हमारी मेकिंग भी शायद सेम ही होगी, बट विद तनिष्क यू आर मोर यू नो कीन टू ट्रस्ट देम इन अ वे। आज 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 मेरे पास आओगे, आप मेरे को जानते हो, सब फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, देन वी आर देयर फॉर सो लॉन्ग, तो इसलिए आप मेरे पास आ जाते हो। Hmm. बट जिसके पास कोई नहीं है, Hmm. उनको कहीं जाके किस पे ट्रस्ट हो, दे विल बी हेजिटेड टू कम एंड जस्ट बाय फ्रॉम मी। Right. वो जाएंगे तनिष्क से ले लो। Got it. Because So, marketing इतनी हाँ, की है, as brand such, खड़ा किया। ब्रांड खड़ा किया और अब ब्रांड का पैसा चुका रहे हो उसको, Got it. वो कमांड कर लेते हैं वो लोग चीज। बट आप वैसे बोलो कि ज्वेलरी मेकिंग का एस्पेक्ट सबका सेम है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है बिकॉज उनकी वर्कमैनशिप कभी अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, हमारा, बट एज एन इंडस्ट्री ऑल्सो सबका आसपास का ही Largely is the है, same. या एंड सेम सेटअप होते हैं, फैक्ट्रीज हैं, दे आर ऑल्सो आउटसोर्सिंग, वी आर ऑल्सो आउटसोर्सिंग, तो Right. मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट ऑफ ज्वेलरी इज मोर और लेस सबका सेम है। Got it. इट इज जस्ट दैट क्राफ्टमैनशिप किसी का बेटर हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। And वो मतलब that is the, उससे भी वैल्यू बहुत बढ़ता यस है यस, because एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जैसे बोलते सी हैं, अल्टीमेटली डिजाइनिंग का भी खेल है, राइट, आपके डिजाइन्स कितने अट्रैक्टिव हैं, कितना मार्केट ट्रेंड से आप सिंक हो रहे हो, विद कितनी नई चीजें आप लेके आ सकते हो ज्वेलरी में, क्या क्या नया आ सकता है। लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आर कमिंग इनटू ज्वेलरी, पीपल आर स्टार्टेड बिकॉज गोल्ड गोइंग अप, पीपल आर थिंकिंग ऑफ यूजिंग स्टील एज अ मेटल, टाइटेनियम इज पिकिंग अप। मतलब आप कैसे इसको चेंज कर सकते हो, इंडस्ट्री को थोड़ा क्या नयापन ला सकते हो, बिकॉज आज सबको कुछ नया चाहिए। आप क्या चीज नहीं दे सकते हो ना क्लाइंट को, तो वो आपको लेके आना है। तो डिजाइन को लेके मतलब आपके हिसाब से अभी करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं मार्केट में? सिंपलिस्टिक, क्लासिक। अभी आप देखोगे ना, किसी को कुछ बड़ा 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 नहीं चाहिए, सिंपल चाहिए, क्लासिक चाहिए। दे स्टेटमेंट पीसेस ज्यादा चलते हैं बिकॉज एक बड़ा सॉलिटर ले लिया, रादर देन पहले तो होता था कि बड़ी बड़ी चीजें पहन लो, अभी लोगों को होता है कि कम पहनो पर अच्छा पहनो। मिनिमलिस्टिक इज द राइट वर्ड, कि कम दिखे पर अच्छा दिखे, दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। गॉट इट, राइट। ये बहुत इंटरेस्टिंग बोला बिकॉज इसलिए स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था लेस इज मोर राइट का काफी right, अभी मतलब ये राइट ट्रेंड है। राइट। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव जो यंगर जनरेशन भी है, डू दे prefer buying a lot of diamonds or a lot of jewelry like that? Now for them, they'll prefer buying a single big stone rather than buying a cluster of छोटा छोटा चीजें,
हाँ, या कोई बड़ी, दे विल प्रेफर वन बिग स्टोन, अ स्टेटमेंट नेकलेस, मतलब ऐसा दिखे बट क्लासिक दिखे ज्यादा पहले अर्लियर 10 years पहले अब बड़े बड़े चोकर सेट बिकते थे, बड़ी बड़ी ज्वेलरी बिकती थी, बट अभी सबने सिंपल चाहिए, रोज वाला चाहिए, एंड विद द न्यू जनरेशन है उनको ज्यादा फ्लॉन्ट करने का मन नहीं है, दे वांट टू वेयर इट फॉर देमसेल्व्स आल्सो, राइट। तो वो ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है, थोड़ा सिंपल चीजें ज्यादा बिकने लग गई हैं, क्लासिक चीजें बिकने लग गई हैं, टेनिस ब्रेसलेट्स मूव होते हैं, लाइक सिंपल ब्रेसलेट्स, राइट। प्लेन नेकलेसेस, सिंपल सिंगल लाइन नेकलेसेस, तो ये सब चीजें बहुत चलती हैं आजकल। इंटरेस्टिंग। द रीजन मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ ऑल्सो यंगस्टर्स की इज बिकॉज यूजुअली आई थिंक मेरे हिसाब से देयर आर टू टाइप्स ऑफ यंगस्टर्स और टू टाइप ऑफ यंगर पीपल। वन इज ऑब्वियसली जिनको ज्यादा ज्वेलरी पसंद नहीं है, अगर पसंद है तो दे विल गो फॉर समथिंग व्हिच इज लाइक अ स्टेटमेंट पीस लाइक यू सेड, राइट, एंड देन देयर इज द अदर ब्रैकेट जो एक्चुअली सोचते हैं कि भाई अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो वी कैन टेक दैट मनी इन्वेस्ट समवेयर एल्स, और अगर कुछ खरीदना ही है तो then lab grown is a very affordable way for us to step into that category. ट्रू। You know? अब लैब ग्रोन का बहुत ऊपर जाने का रीजन ये भी बहुत बड़ा, आप जो बोल रहे हैं ना कि आज की नई जनरेशन को लगता है यार मैं 2 लाख का डायमंड ले लूंगी, उससे बेटर मैं 2 लाख की SIP कर लेती हूँ या शेयर मार्केट में डाल, बिकॉज द ट्रेंड इज लाइक दैट, और उस मैं 10-20 हज़ार का लैब ग्रोन पहन के आई जस्ट, बट देयर आर डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस, दोनों अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, दोनों का थॉट प्रोसेस अलग है। एक किसी के लिए एक इमोशनल वैल्यू भी होती है कि यार मेरे को हीरा ही पहनना है, मेरे को पहनना है, मेरी सेटिस्फेक्शन में पहनना है, आगे जाके मैं अपने बच्चों को देना चाहती हूँ, व्हाटएवर आई वांट टू एंजॉय, और किसी को होता है नहीं यार मेरे को नहीं पहनना। इट इज वेरी डिफरेंट चॉइसेस हैं, और दोनों अपनी जगह सही है। आई मीन इट्स नॉट कि जो नेचुरल ले रहा है वो गलती कर रहा है या जो लैब ग्रोन खरीद रहा है वो गलती कर रहा है। लैब ग्रोन वाले को भी पता है वो खरीद रहा है 10-20 हज़ार की चीजें पहनेगा, उसको रखेगा नहीं, उसको भी पता है कि वो पैसा उसका वापस कुछ नहीं होना, राइट, बट ठीक है प्रॉब्ली वो अपना पैसा कहीं और लगा के दे आर डूइंग समथिंग एल्स आउट ऑफ इट। तो दोनों अलग थॉट प्रोसेस के हैं, बट यस ये थॉट प्रोसेस आ गया है लोगों में कि आजकल की जो यंगर जनरेशन है दे आर प्रॉब्ली ओके बाइंग 2 लाख रुपए का LV का बैग बट नॉट बाइंग अ डायमंड, राइट। मतलब ये थॉट प्रोसेस भी है। हम चलो पैसा सेव करने की बात कर रहे हैं, बट दे आर ओके स्पेंडिंग मनी on a 10 lakh rupee Europe trip, right, then buying a stone that's going to be for them for next Generation, 50 years or probably 500 years. बट ठीक है अपना अपना थॉट प्रोसेस है, दोनों चीजें साथ में चलती हैं, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये लैब ग्रोन का जो मार्केट है ये बेसिकली सडनली इतना बड़ा कहाँ से हो गया? See, I'll tell you one thing, एक तो एक बात सच है, कड़वा सच है कि 10 में से 8 हस्बैंड्स को पसंद नहीं था कि वाइफ ज्वेलरी खरीद रही है क्योंकि इंडियन बीइंग अ ट्रेडिशनल मार्केट, मतलब एक still last 15-20 years all you can see so many girls working doing so great for themselves, but एक परसेप्शन था कि हस्बैंड ज्वेलरी दिला रहा है वाइफ को, वो एक मेट्रोज में ऐसा था कि चलो एवरीबॉडी इज वर्किंग, बट यू गो टियर 2 दिमाग में एनग्रेव किया गया कि हस्बैंड ने ज्वेलरी दिलानी है वाइफ को, और हस्बैंड इस बात से हमेशा भागता था कहीं ना कहीं, बिकॉज ये सच है। तो हस्बैंड को भी एक मौका मिला कि यार लैब ग्रूम करके चीज आई है, जो चीज 5 लाख रुपए लगने थे 50,000 में काम हो रहा है। तो वो माइंडसेट इनिशियली एक बूम आया नेचुरल की लैब ग्रूम की तरफ कि सबने लगा कि नया चीज आई है, लो क्या हो गया, चलो जहाँ 5 लाख लगने थे वहां 50,000 में काम हुआ है। बट वो ये नहीं समझ पाए कि 50,000 की चीज भी 10,000 की थी जो आई 50,000 में इनिशियली। सो पीपल लॉस्ट लॉट ऑफ मनी देयर ऑल्सो, बट चलो ठीक है, उस टाइम आदमी क्या सोचता है 5 लाख रुपए बच गए, ये नहीं सोचते कि चलो कितने गए। बट ये तो एक इनिशियल बूम वहां से भी आया। एक नई चीज आती है मार्केट में, सबको एक क्रेज भी रहता है कि कुछ ले, क्या है क्या है क्या है क्या है, तो वो भी है। थर्ड आई थिंक जो एक अंडररेटेड एस्पेक्ट बोल सकते हो, जो मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि डायमंड शुरू से एक एस्पिरेशनल चीज रही है फॉर एवरीवन, एंड आई डोंट थिंक 1-2% लोगों से ज्यादा डायमंड खरीदा हुआ किसी ने इंडिया में, एंड इंडिया बीइंग सच अ बिग मार्केट। तो लैब ग्रोन के पास एक मार्केट ऐसा भी था जो एस्पिरेशनल डायमंड बायर था, बट उसकी रीच में नहीं था, जो कभी उसकी पॉकेट उसको अलाउ नहीं कर रही थी वो खरीद सके अपनी वाइफ के लिए, बट ऑलवेज यू ऑलवेज वांट टू बाय समथिंग फॉर योर लव्ड वंस। तो वो मार्केट जो था, लैब ग्रोन ने उस मार्केट को बहुत अटैक किया कहीं ना कहीं, कि जो एस्पिरेशनल बायर था या जिसको लेना था बट आज नहीं है पैसे इतने कि मैं अपना वो ले सकूं,
तो लैब ग्रोन वहां से भी, तो आज लैब ग्रोन का चलन बहुत है। ऐसा नहीं है कि लैब ग्रोन कोई पीपल से कि बहुत प्राइस कम हो गए, लैब ग्रोन आल्सो वेंट लाइक दिस, नाउ इट्स कमिंग डाउन लाइक दिस, बट इट्स स्टिल डूइंग गुड, राइट, बिकॉज इट इज केटरिंग टू अ मार्केट जो कि बहुत बड़ा था। आप Right. सोचो, इंडिया बीइंग सच अ बिग कंट्री, इतना बड़ा मार्केट था लैब ग्रोन के पास, और वो अच्छे से केटर कर रहा है उसको। अंडरस्टैंड। सो लैब ग्रोन का ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि एक जो बायर नहीं था उसके पास एक प्रोडक्ट आ गया, एक्सेसिबिलिटी आ गई एक प्रोडक्ट आ गया जो सिमिलर लुकिंग है, फील वही दे रहा है आपको, और आपको पहन के अच्छा भी लग रहा है, तो ठीक है ना। राइट। सबसे ज्यादा ये लैब ग्रोन मार्केट बेसिकली, और रादर लैब ग्रोन स्टोन्स जो है, जो डायमंड्स है, वो कहाँ से बनते हैं और आते हैं? सी, चाइना से आते हैं इसकी पूरी रफ, एंड सूरत में अभी ग्रोइंग मशीन्स आती हैं इनमें, सीड्स आते हैं इनके, चाइना से आते हैं जो आते हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ मशीन्स इन सूरत। मशीन में आप डालो और उसमें से ये पत्थर निकलते हैं, सीवीडी, जिसे हम बेसिकली सीवीडी बोलते हैं, ओके। एंड इसको वैसे ही पॉलिश करते हैं जैसे नेचुरल डायमंड को पॉलिश करते हैं, मतलब जो उसको कटिंग का तरीका है वो सेम है, ओके। बट बेसिकली डायमंड्स आपने जो नेचुरली ग्रो होते थे या जमीन के नीचे बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, वो आप अब मशीन में बना रहे हो। राइट। तो ये प्रोसेस, मतलब कैन यू जस्ट ये डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड बनाने का एक बार प्रोसेस विस्तार में खाली समझा देंगे? जैसे आपने बोला कि ये सीड है, तो जस्ट ब्रेक इट डाउन फॉर अस। वो सीड चाइना से आए, समझो, वो सीड, दैट इज सीड मीनिंग वो एक्चुअली सीड होता है? हाँ, मतलब वो एक क्यूबिकल जैसे कुछ ऐसे दिखेंगे आपको, क्यूबिकल, ब्लैक ग्रे क्यूबिकल जैसे होंगे, ओके। और वो सब मशीन में जाते हैं। मशीन में देयर इज अ हाई प्रेशर, हाई सब मशीन्स हैं, जिससे वो एकदम वैसा ही एक कार्बन, बेसिकली कार्बन से ही बना है, राइट। तो दे उन्होंने कार्बन को हाई प्रेशर, वही उतना स्टीम दे, प्रेशर दे के सब कर करा के, देन दे मेक दिस रफ निकलती है उसकी, सीवीडी रफ बोलते हैं उसे, दिस ग्रेइश ब्लैकिश कलर, राइट। एंड उसको निकाल के फिर आप उसको, एक मशीन्स आती हैं, क्या उसको, जैसे एक ट्रेडिशनल घंटी बोलते हैं हम, इन आर ट्रेड लैंग्वेज घंटी बोलते हैं, जैसे हाथ उस पे अपना एक जो कारीगर होता है, वो उसको एक मशीन में हाथ में फिट करके देन एक एक स्टोन को हाथ से फिर उसको कटिंग करते हैं। अच्छा, तो लैब ग्रोन को भी वैसे ही कट करना पड़ता है? ओके। कटिंग टेक्निक इज सेम। ओके। जैसे आप नेचुरल रफ डायमंड को काटते हो वैसे ही लैब ग्रोन कटेगा। गॉट इट। कटिंग का तरीका जो है वो बिल्कुल सेम है। गॉट इट इज जस्ट दैट जो रफ निकली आपकी, जो रफ हम नेचुरली निकाल रहे हैं जमीन से, वो रफ मशीन से निकल रही है। गॉट इट। एंड बाकी सब जो मेट्रिक्स रहते हैं, पैरामीटर्स, वो भी सेम ही होते हैं, कलर, ये वो सब भी सब सेम है। ओके। मतलब उसमें भी डी कलर आएगा, उसमें भी वही ग्रेडिंग है। गॉट इट। वही ग्रेडिंग है, बट सारे एस्पेक्ट बाकी हैं, सब वैसे ही है, सेम ही है। गॉट इट। इसमें भी सर्टिफिकेशन आती है, यस, आती है। इसमें भी अभी इसमें जीआई ने बंद कर दिया है, जीआई जो द बेस्ट लैब, दे हैव स्टॉप्ड, दे डोंट डू लैब ग्रोन नाउ, they don't want to promote lab grown probably. And IGI is one lab that does lab grown also. Got it. And what is the price difference क्या होता है between real and a lab grown diamond? See, a lab grown, say a 1 carat HVS का stone is somewhere around 2.5 lakhs per carat for a natural diamond. आज आप lab grown लेने जाओ तो it is say 8 to 10,000 rupees a carat. बट वो मार्केट में बिकता है कुछ 20-25 हजार, 30 हजार में बिक जाता, 50 हजार में बिक जाता होगा, बट एक जो वैल्यू, उसकी एक्चुअल वैल्यू है, दैट इज 8 to 10,000, नॉट मोर देन दैट। वाओ, सो दैट्स अ बिग डिफरेंस। दैट्स मैसिव। मैसिव डिफरेंस, या सो रिटेलर्स इनिशियली मेड लॉट ऑफ मनी ऑन लैब ग्रोन, बिकॉज मैंने सुना है कि बहुत सारे जो रिटेलर्स और बहुत सारे जो bespoke व्हाटएवर ब्रांड्स भी जो हैं, उन्होंने काइंड ऑफ लाइक टू प्रमोट आल्सो बीच में एक्सचेंज ऑफर्स भी डाले थे, वेयर you can turn in your old design diamonds and then you can get in like a new design with new jewelry. yes. And ये massive difference है, तो it must be like really crazy. Absolutely. Wow, this is like so interesting. मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है नेचुरल लैब ग्रोन के प्राइसेस में, there is a big difference. Got it. And ये डिफरेंस भी बेसिकली अगर आपको जानना है एज अ कंज्यूमर और इवन एज समवन हु इज ये ट्रेड में भी जो है, तो वो भी बेसिकली मशीन से ही पता चल सकता है। हाँ, मतलब नेचुरल और लैब ग्रोन का जो, बट अभी तो क्या है, पोर्टेबल मशीन्स भी आ गई हैं। ओके। मतलब यू गो टू एनी ज्वेलर, ही विल हैव अ मशीन, सीवीडी और नेचुरल, जो लैब ग्रोन और नेचुरल को डिफरेंशिएट करने के लिए। इवन यू वांट टू बाय एट होम, इतने पॉकेट हेल्ड डिवाइसेस भी आते हैं। आप ऐसे चेक करो, उस पर लगा के दिखा देगा आपको कि ये नेचुरल है, सीवीडी है।
सो इट इज वेरी एक्सेसिबल नाउ. इट इज नॉट कि आप कुछ बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है इसके पीछे. Right. देयर आर लॉट ऑफ मशीन्स अवेलेबल, हर जगह अवेलेबल है नेचुरल लैब को चेक करने के लिए. Got it. एंड इट ऐसा नहीं कि आपको लेबोरेटरी में ही जाना है. Understood. देयर आर लॉट ऑफ पोर्टेबल मशीन्स आल्सो, हर ऑफिस में मिल जाएगी आपको. तो ये CVD you are saying, what is दैट्स CVD? अदर नेम फॉर लैब ग्रोन. अच्छा, लैब ग्रोन. ओके, क्या फुल फॉर्म है इसका CVD का कुछ? जो याद है, नहीं आ मुझे रहा. याद नहीं आ रहा. केमिकल वेपर समथिंग, केमिकल वेपर समथिंग ऐसा कुछ है. Got it. So अगर आज के तारीख में आपको भी अगर मैं दे दूं एक लैब ग्रोन और इसके बीच में विदाउट मशीन, you will never be able to tell. हाँ. Even with a loop or anything हाँ, of that मतलब sort of stuff. कोई बहुत ही खराब क्वालिटी का लैब ग्रोन हो हाँ. तो मालूम पड़ेगा. बट इफ इट्स अ वेल कट, अच्छे कलर क्लैरिटी Got का it. लैब ग्रोन है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक. मतलब with a normal eye with a loop also, it's very difficult to Understood. differentiate कि कौन सा लैब ग्रोन है कौन सा नेचुरल है. Understood. Let's talk a little bit about the market in India. मतलब इंडिया में सबसे बड़ी cities और hubs कौन सी हैं डायमंड के लिए? See, Mumbai is the biggest trading hub Okay. because diamond industry is basically in Bombay, in Mumbai, and the cutting facilities is basically in Surat or probably entire Gujarat, you can say. Okay. So आज भी 70-80% हीरा जितना भी है वो जो आप जो कटता है या जो बनता है, नॉट द रॉ मटेरियल सारा बाहर से ही आता है. Right. इंडिया इज नॉट डायमंड रफ नहीं निकलता इंडिया में इतना. तो बट सूरत एंड गुजरात में ही सारी कटिंग होती है जितनी फैक्ट्रीज हैं. Got it. सो बेसिकली रफ इंपोर्ट होती है इंडिया, इंडिया में घिसा जाता है, इंडिया में इसमें वैल्यूडेशन होती है और वापस एक्सपोर्ट किया जाता है. एंड इंडिया लास्ट आप देखेंगे लास्ट 10 साल में इंडिया इज वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग मार्केट्स बिकॉज पीपल हैव स्पेंडिंग पावर. लोगों के पास पैसे हैं खर्च करने को, देयर इज मनी, लोगों के शौक भी हैं. यू सी अराउंड पीपल आर स्पेंडिंग ऑन थिंग्स. वॉचेस बिक रही हैं, घड़ियाँ बिक रही हैं, गाड़ियाँ बिक रही हैं, jewelry बिक रही है. Right. India last 10 years has really done good in terms of jewelry industry. We see a very bright future for India. Understand. Even tier 1 cities, say tier 2, tier 3, a lot of all pan India you can say, and is doing really good in jewelry. No Understand. problems with. In terms of the international markets, India is one of the best performing markets. Okay. And India, मतलब जैसा आप बोल रहे हैं कि Bombay is like the hub where most of trading happens, and Yeah. वहाँ पे Yeah. cutting and all is like kind of Gujarat. Yeah. Does India बहुत re-export भी करता है, export भी करता है यहाँ से काफी? Yeah. India, I think India export ही करता है मेजर माल. अभी भी America is the biggest consumer of diamond. It was China was also probably 2 years back. China was also doing amazingly good, but I think after COVID, up last 2 years, तो बिल्कुल ही China has been out of diamond market now. Oh. Earlier it was US and China, both of them being the major say chunk eaters of diamonds. Right. But with India last 10 years doing well, we have sustained as an industry because of India also. तो अभी मेजर आप समझो कि आज भी फिर भी इंडिया का जो मेजर जो जितना भी डायमंड जो बन रहा है सूरत में वापस एक्सपोर्ट ही हो रहा है. इंडिया में आज भी कंजम्पशन इतना बड़ा नहीं है कि सारा माल यहाँ पर हम यूज कर सके. Understand. Yeah. Right. But next 10 years probably we are going to be the biggest in terms of jewelry in diamonds also. Oh, wow. Consumption also. Got it. And this is like combined diamonds, or you're talking about just diamonds are not CVD lab grown? सी लैब ग्रोन कॉन्सेप्ट ही अभी 5 साल 6 साल पुराना है. Okay. इससे पहले तो लैब ग्रोन का हमने कभी सुना भी नहीं था. Right. बट आज की डेट में लैब ग्रोन भी जितना बन रहा है आई थिंक 70-80% एक्सपोर्ट हो रहा है. यूएस इज ईटिंग अ लॉट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स. यूएस का जो मार्केट है वो लैब ग्रोन की तरफ बहुत शिफ्ट हो गया है. इंडिया भी बहुत चल रहा है लैब ग्रोन, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है, बट स्टिल अगेन आई विल से कि 80% एक्सपोर्ट हो रहा है, 20% लोकल कंजम्पशन हो रही है. सेम आई विल से विद नेचुरल एंड सेम आई विल से विद लैब ग्रोन. And America being the number one for both the things. Right, because America traditionally also artificial jewelry and all maybe it's been always America been the biggest consumer country है, उसको कुछ भी दे दो बस वो लेता ही रहता है. Also, I think मेरे को क्यों लगता है ऐसा is because if I remember correctly, like almost I have a lot of friends who are in this industry, especially jewelry, and jewelry वाले भी मुझे याद है most of them who export. तो सिल्वर भी जब भी करते थे वो 10 साल पहले, अभी तो ऑफ कोर्स बहुत ही बड़ा हो गया मार्केट. तो वो तभी भी मुझे यही कहते थे कि उनके दिमाग में ऐसा नहीं है अपनी तरह इंडियंस की तरह कि भाई गोल्ड में इन्वेस्ट करो, जनरेशन से खरीद के आओ तो आपको ये जब when we will pass on, so we'll pass on to you. So they don't buy only, and when they buy,
they will buy more of artificial stuff. राइट इसके लिए, एक्चुअली आप देखो ना, अमेरिकन कभी भी सेविंग मेंटालिटी के थे ही नहीं. right? उनको कभी उन्होंने, हम अभी भी अपने अगले 2 जनरेशन के लिए सोच लेते हैं कि बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए क्या, मतलब बिकॉज ट्रेडिशनली वी ब्रॉट अप लाइक दैट. Yeah, तो आज आप जो भी डिसीजन लेते हो ये सोचते हो चले इसके काम आ जाएगा या आगे ये पास ऑन हो जाएगा. right, तो हम उस माइंडसेट से चलते हैं. दीज अमेरिकंस वर नेवर ऑफ दैट माइंडसेट. right. वो अपने लिए खाते हैं, अपने लिए पीते हैं, अपने लिए चिल करते हैं. So, मुझे लग रहा है ये जो अपनी करंट जनरेशन आ रही है वो भी बहुत जल्दी यही ऐसी होने होगी. वाला है. They are also thinking more from current perspective Absolutely, in that absolutely, respect. absolutely. इंडिया में सबसे बड़े जो डायमंड मैन्युफैक्चरर्स हैं, like if you can list those down. See, there's a company called Kiran Gems. Okay. He's like one of the biggest manufacturer of diamonds in India. Kiran Gems is one. Shri Ramakrishna Exports. Fondly we call them SRK. Okay. वो famous वाले जो जिन्होंने अपने सब employees No, that's Hare Krishna Exports. That's it's a very big company. Okay. They like do a lot of good things Right. for the company, for their people also. Hare Krishna, Dharmanandan Diamonds is Okay. one. Then KGK is a company that's really big in diamonds. So they're big international players. I mean, presence in a lot of countries. India being their home turf, but they have presence in probably most 6-7 countries, and they're doing really well for themselves. ये इनका जो आपने बोला वो एक बार वो ब्रेक डाउन करेंगे. व्हाट इज दैट इंस्टेंस जो मैंने पेपर में पढ़ा था हरे कृष्णा का कि उन्होंने अपने सब एम्प्लॉइज को गाड़ी गिफ्ट. हाँ, मतलब उन्होंने एक आई थिंक दे मस्ट हैव क्रिएटेड कुछ बेंचमार्क्स कि भाई किसको कितना कितना कैसे कैसे है. विद द टॉप मैनेजमेंट आई थिंक दे गेव थोड़ी मर्सिडीज दी थी कुछ 5-7-10 लोगों को, एग्जैक्टली आई डोंट नो कितने लोगों को दी थी. देन प्रॉब्ली उनसे एक नीचे ब्रैकेट वाले लोगों को कुछ दूसरी गाड़ी दी थी. एंड आई थिंक लॉट ऑफ मेजरली एम्प्लॉइज को दे गेव नैनो. आई थिंक दैट्स मतलब वो बहुत बड़ा न्यूज़ हो गया था तभी के टाइम पे कि उन्होंने हर एक एम्प्लॉय को गाड़ियां गिफ्ट की है दिवाली में. दिवाली में. बट दीज गाइज आर जेन्युइनली वेरी helpful people, and for the company, for us also, like I also buy from them, I also deal with them. They have been very courteous, very helpful in every respect, or they do a lot. Respected plus good. Yeah, and they do a lot for everyone. For the community. Yeah, for the community also. Industry. Yeah, for the industry also. Nice, interesting. ये डायमंड के बारे में एक्चुअली जब हम बात करते हैं तो मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया. इज लाइक कि यूजुअली जब भी आप मिलते हैं, सो डज डायमंड सूट एवरीवन? या डायमंड का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट नहीं है सच. पर इंडिया में क्या होता है कि हर चीज को ज्योतिषी से जोड़ देते हैं. राइट. तो वैसे आप देखो तो कोई इसका बहुत डायमंड का कोई इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोन कि आपको वो उससे आप अच्छे या बुरे आपकी लाइफ में क्या हो जाएगा वो वैसा कोई ऐसा स्टोन है नहीं. यस, लॉट ऑफ अदर स्टोन्स आर लाइक इंडिया में ब्लू सफायर, नीलम जिसे बोलते हैं हिंदी में. नीलम के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बात है कि नीलम अगर सूट करता है तो बहुत ज्यादा सूट करता है, और अगर नहीं करता है तो इट कैन रियली ब्रिंग अ डाउनफॉल. एज पर एस्ट्रोलॉजिकल रीजन से अब क्या है क्यों है पता नहीं, पर ये सिर्फ इंडिया में माना जाता है. आज इंडिया से बाहर इसकी कोई बात ही नहीं होती है. बट इंडिया इज वन कंट्री जहाँ पे हम थोड़ा विश्वास भी करते हैं, हम सुपरस्टिशियस भी होते हैं, हम थोड़ा इन चीजों में सोचते भी हैं. तो इंडिया के हिसाब से यस, कलर स्टोन, लॉट ऑफ अदर, पुखराज जैसे येलो सफायर बोला जाता है, वो स्टोन है, उसके लिए भी काफी होता है कि वो सूट करता है. इवन पन्ना जैसे एमरल्ड या वी कॉल पन्ना इन हिंदी, ये सब इंडिया में कलर स्टोन, थोड़ा मूंगा, कोरल्स. राइट. सो इंडिया में थोड़ा सा ये सब, बट ये सब इंडिया में ही है. आप इंडिया से बाहर चले जाइए तो कोई स्टोन से सिर्फ उसको पहनने के लिए, एंजॉय करने के लिए या फिर वैसे कराया जाता है. बट डायमंड के लिए एज सच वो नहीं है कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्टोन. ठीक है, कभी किसी ने बोल दिया कि पहनो, कोई ये नहीं बोलेगा मत पहनो. डायमंड आपको ये बोल सकते हैं कि पहन लो, इट इज गुड फॉर यू, पर आपको ये नहीं बोलेगा कि डायमंड मत पहनो, ये आपको सूट नहीं करेगा. गॉट इट. राइट. सो अगर डायमंड के कंपैरिजन में से फॉर एग्जांपल दूसरे कौन से स्टोन्स में अच्छा अगर इन्वेस्ट करना है, कुछ खरीदना है, अब इफ यू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट तो प्रेशियस स्टोन में मेजर 3 स्टोन्स ही आते हैं. ब्लू सफायर या नीलम, रूबी, एंड थर्ड इज एमरल्ड्स. ओके. इन तीनों ने लास्ट आई थिंक प्रॉब्ली 5 years में एक जो गुड क्वालिटी ऑफ कलर स्टोन्स हैव ट्रिपल्ड और प्रॉब्ली 5 times the price. It has gone crazy
because but again this I'm talking about gem quality. I mean, Okay. not commercial qualities. Commercial qualities are readily available, but they're still holding their value. They're doing good for themselves, but good quality of color stones are really doing so well. And with, you see all the industrialists now, like the Reliance wedding, you saw Ambani's, you look at the color stones they've been promoting, they've been wearing emeralds and what not, jitne bhi color stones, so color stones ke pricing, and they are genuinely an investment. If you really ask me, yes, good quality color stones आपको पैसा देके ही जाएंगे. Got it. आप उसको पहनो, एंजॉय करो, और अगर आपको 5 साल बाद उसको चेंज भी करना है ना, वो आपको पैसे दे के ही जाएंगे. Got it. ये कमर्शियल क्वालिटी और इसके बाद में आपने डिफरेंस, और व्हाट इज द चेंज? कमर्शियल मींस थोड़ा लोअर क्लैरिटी, ओके, थोड़ा सा वीकर स्टोन्स, बिकॉज अच्छी चीज की रेयरिटी है, अच्छी चीज नहीं मिलती है. कलर स्टोन्स में भी क्या हो गया है, बिकॉज सी नेचुरल स्टोन्स की ये एक खूबी है कि धीरे धीरे उनकी माइंड्स तो खत्म हो ही रही है. राइट. ठीक है, आप धीरे धीरे आप देखना उसकी रेयरिटी बढ़ती रहेगी. एक माइंड अगर बंद हो गई, आज एक पेंटर की पेंटिंग महंगी कब होती है? पेंटर के मरने के बाद. तो वैसा ही इसमें है कि जब चीज कम होती रहेगी ना, उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी. तो कलर स्टोन्स की वो एरा में जाने लग गया. ओह, इज इट? ओके. बाकी प्रोसेस वाइज डायमंड्स और उनका कलर स्टोन्स का इज द सेम? दे आल्सो नेचुरली कम? या सब नेचुरली है. कलर स्टोन सारे जितने भी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये सब नेचुरल की बात है. इसमें भी लैब ग्रोन आता है. राइट. अच्छा. इसमें भी लैब ग्रोन आता है, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है. गॉट यू. मतलब वो 100-200 रुपए की चीज है वैसा. राइट. सो वैल्यू होल्ड सिर्फ नेचुरल की करती है. अंडरस्टैंड. बी इट डायमंड एंड बी इट कलर स्टोन्स. ओके. एंड इसके जो सर्टिफिकेशंस एंड जो क्लैरिटी एंड ऑल, वो सब नहीं, वो बिल्कुल अलग है. ओके. लैब्स भी अलग है. अच्छा. लैब्स भी अलग है एंड क्राइटेरिया भी डिफरेंट है. हर कलर स्टोन का बड़ा अलग एस्पेक्ट है. मतलब वो एक डिफरेंट ही टेंजेंट है ऑल टुगेदर. No, that's a very interesting conversation. Only color stones पे भी एक अलग conversation करेंगे. But color stone is very interesting. Yeah, because मुझे ऐसा लग रहा है कि that's a very it's a very interesting and it is genuinely an investment. Color stones. Got it. Right. And comparison with diamond, price wise also they're similar, or diamond is more expensive? Yeah, diamond has a very big range. Same with color stone. Color stones could be way expensive than diamonds also. मतलब कलर स्टोन्स आज की डेट में probably in some articles are more expensive than diamonds. Oh wow. Yeah. Okay. Because of the size and weight. Size, weight, clarity. Because diamond में आपको फिर भी थोड़े pieces आपको इकट्ठे करने आप कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा. कलर स्टोन में it's difficult to find good things. Oh. Yeah. Interesting. Great. All right. Just parting thoughts. Next 5 से 10 साल में diamond lab grown का overall, where do you see the market? See, very frankly, lab grown is here to stay. मैं ये बोलूँ कि lab grown नहीं चलेगा, I see no reason वो नहीं चलेगा. क्यों नहीं चलेगा? चलेगा. Lab grown as a market चलेगा, but I also see natural doing good because lab grown आप एक बार ले लोगे, 2 बार ले लोगे, आप तीसरी बार बोलोगे छोड़ यार पड़ा है. डायमंड इज वन थिंग, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये पड़ा है कि चल पैसा भी मेरा सेफ है, आगे मेरे को आगे भी जनरेशन जो आप पास करोगे. एंड व्हेन यू फील हैप्पी you want to buy something, you want to buy something real. Right. आपको कभी भी अच्छा, आप आज जाके आप नकली किसी गुची की आप कोई टी शर्ट ले आओगे, नकली पहन के आप, you can't flaunt it, right? You will always be careful कि किसी को पता ना चल जाए. आप कभी भी अपने एक 5 कैरेट का लैब ग्रोन पहन के ऐसे नहीं घूमोगे कि यार, you know, you will be always skeptical. हाँ. But even if you buy a 30 pointer natural, you always flaunt it. So कहीं ना कहीं नेचुरल का बाजार भी चलेगा. लैब ग्रोन इज हियर टू स्टे बिकॉज इट हैज अ मार्केट ऑफ इट्स ओन, और वो चलेगा. बट नेचुरल इज आल्सो गोना पिक अप. वी आर सीइंग सेल्स डूइंग गुड दिस सीजन एंड पीपल आर रेडी टू बाय अगेन. बीच में हमें लग रहा था थोड़ा नेगेटिव थॉट्स था, बट राइट नाउ प्राइसेस आर आल्सो स्टेबल. सो आई थिंक बोथ विल ग्रो, एंड इंडिया बीइंग अ मार्केट that is ready to spend now. Right. I thought you will bring in the watches basically in this conversation, because usually that's the सबसे easy metric to understand. Right. Because watches is like where you actually get a lot of real and fake. Right. And I mean, when you're wearing a real one, you know it's a real Absolutely. one. Yeah, it's about your confidence also. See, ultimately आपने अगर नकली Rolex पहन ली है, आप उसको कहीं ना कहीं छुपाते हो, you know, आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो. मतलब जिसके पास असली है उसको देख के समझ में आ जाएगा कि कैसी है. राइट.
which is true. राइट Right. Get it. तो वो वाला है कि नेचुरल के साथ आप कभी भी अपना लैब ग्रोन फ्लॉन्ट नहीं करोगे मैं तो इतने सी बात जो चीज फ्लॉन्ट नहीं कर रहे हो तो उसको छुपा ही रहे हो ना Right. यू विल ऑलवेज फ्लॉन्ट अ नेचुरल डायमंड True. Great. All right. Thank you so much, Ashrat. ओके बाबा ओके थैंक यू फॉर हैविंग मी Hope you had a good अरे conversation. लवली Starting when you were a little nervous, Yeah, but yeah, I I was. saw you getting Yeah, eased into the yeah, conversation yeah. after 10-15 Yeah, minutes. yeah, I was like, क्या करना है, कैसे करना है? Great. All right, but yes, ये gemstone वाली conversation also we will Done, do for done, sure. done. It's a very interesting topic, I Done, think. done, done. All right. Thanks. Okay, buddy.